next example, new example today we are discussing is for all integers n greater than equal to 1, the set of complex nth roots of unity, that is complex zeros of x power n minus 1. So what we are trying to find is the zeros of this polynomial. That is, we want to find those values of x for which x power n is equal to 1. Or in other words, we want to say that these are the complex nth roots of unity. Okay, so nth roots of unity है x power n is equal to 1. It means those complex numbers whose power n is equal to 1. या फिर आप यूँ कहें कि whose nth root 1 by n is equal to 1. So as we know that this set can be determined as follows: cos k times 360 degree divided by n plus iota sine k times 360 degree over n, where k starts from 0, 1 to up to n minus 1. Now, how did we form this set? How these form the complex nth root of unity? I hope you have studied the course of complex analysis and complex variables. You have found this nth root of unity there, z power n is equal to 1 या z power 1 over n आपने फाइंड किया है. उसको आप कैसे फाइंड करते हैं? पहले आप उसके निकालते हैं पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर उसके बाद आप उसकी पावर 1 over n लेते हैं using de Moivre's theorem. So it is cos theta cos x कह रहे थे plus iota sin x and whole raised to the power 1 over n. Now when we find the nth roots of unity, we will apply the de Moivre's theorem here. This power 1 over n will be shifted inside the model inside the argument of this cos and sine, inside the argument of this complex number. तो वो जब शिफ्ट होगा तो ये 1 over n k times 360 over n हो जाएगा. ये k 360 कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली आप उस के जब n रूट्स n नंबर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो आप उसको जो है वो n टोटल जो एंगल है वो है जी 360 डिग्री, और उसके पार्ट्स में उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, k पार्ट्स निकाल रहे हैं, उसके kth रूट या nth रूट आप निकाल रहे हैं. सो आप 0 से लेकर n minus 1 तक उसके रूट्स होंगे ना, टोटल जो होंगे वो n रूट्स होंगे. तो आप उसके इक्वल पार्ट्स में अगर डिवीजन करें एंगल की तो वो क्या होगा? 360 मल्टीप्लाइड बाई k डिवाइडेड बाई n. तो ये हर एंगल की मेजर होगी. ठीक है. So this is just recall the concept that we studied in the complex numbers. वहाँ पर आप complex roots nth roots of unity जब find करते हैं तो वो इस किस्म का फॉर्मूला आता है, और k की वैल्यूज होती है 0, 1 से लेकर n minus 1. Now this is a group under complex multiplication. We can prove it that this forms a group. अगर आपने इसमें फाइंड करना हो कि मल्टीप्लिकेशन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वी कैन इजीली प्रूव दैट this property generally holds for all complex numbers, so that is why we don't need to check it here for this subset. So z1 times z2 times z3 is equal to z1 z2 multiplied by z3. So associative law generally holds under multiplication for all complex numbers. So that will also hold in this set, which is a subset of the complex. तो ये तो हर एक में होल्ड कर रहा है. ठीक है, for all z1 z2 z3 in complex numbers. So ये तो होल्ड कर रहा है. The second thing, do we have identity element in this set? तो cos 0 plus iota sin 0, अगर आप थीटा को 0 ले तो ये जो एलिमेंट आता है ये आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है. ठीक है, इस सेट के अंदर. तो 1 जिसका आर्गुमेंट होता है 0, उसको आप लिख सकते हैं cos 0 plus iota sin 0.
ठीक है, ये 1 जो है वो लाजमी तौर पर 1 का nth रूट होगा। ठीक है, इसके अलावा भी nth रूट होंगे, लेकिन 1 itself will also be 1, क्योंकि 1 पावर n जो है वो भी 1 की इक्वल है, तो 1 इस सेट को बिलोंग करेगा। दूसरे लफ्जों में 1 इस सेट को क्यों बिलोंग करेगा? अगर आप k की वैल्यू 0 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, जो कि इक्वल टू 1 होता है, तो दैट विल बिलोंग टू दिस सेट। या यूं भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 पावर n जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, वो इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का, दैट इज व्हाई इट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, तो आइडेंटिटी इस सेट को बिलोंग कर रहा है, hence this set is associative under that complex multiplication. Secondly, it contains the identity. Third, do we have inverse of every element in this set? So yes, the answer is yes. For any complex number, for example, if we have cos k 360 degree by n plus iota sine k 360 over n, when we want to find its inverse by the formula that we saw last time, let me go back to this slide. जो यहाँ पे आपने फाइंड किया था a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स जो है वो भी इसी तरह का, वो भी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी में आएगा। क्यों? बिकॉज इफ यू सी, अगर x, अगर कोई ऐसा x है जिसकी पावर n जो है वो 1 के इक्वल है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा इनवर्स भी होगा उस एलिमेंट का जिसकी पावर n भी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, इफ x raised to power n equals 1 for some complex number x, right? So we can prove that ये जो complex number है, this one a over a square plus b square minus b over a square plus b square, ये भी इसकी पावर भी 1, इसकी पावर n जो है वो भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। तो therefore this set contains all the things that group requires. It has associative law, it has identity, it has inverse for every non-zero, for every element, right? So and the all the elements of this, now we are taking a particular example that if n is equal to 6, means we want to find the 6 complex zeros of x power 6 minus 1। दूसरे लफ्जों में हम 6th root of unity find out करते हैं। 1 के 1 as a complex number की power 1 by 6 हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसमें एक सर काइंडली सॉरी इनवर्स रिपीट कर दें सर, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लेक्चर की आवाज नहीं आ रही। लेक्चर की आवाज नहीं आ रही? आपको आ रही है? जी सर मुझे तो आ रही है। तो फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक को आ रही हो बाकियों को ना आ रही हो, शायद कोई और इशू है जिनकी तरफ माइक का या हेडफोन का। ओके सर। तो महाम आपका तो वो कनेक्ट ही नहीं है हेडफोन, तो आपको आवाज कैसे आएगी? ऑडियो कनेक्टिंग है आपकी। मेरे ख्याल है एक महाम को इशू है, बाकी सबको आवाज आ रही है। यस सर। इट मीन्स यस महाम सर। को नहीं आ रही ना, उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो आप महाम कोई लेट मी राइट her. Recording in progress. रिकॉर्डिंग ऑन की है। ओके अच्छा, आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूं, एक्स पावर n माइनस 1 वाला। तो इनवर्स जो है, अगर x, मिसाल के तौर पर अगर ये नंबर जो है ये उसका कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट करूं तो कैसे फाइंड करेंगे? इस नंबर का इनवर्स फाइंड करना हो,
अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको इन्वर्स का मेथड बताया था, क्या करते हैं. We have to find the inverse of this complex number cos k times 360 over n, 360 dot k plus iota sine of k times 360 कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. पहले तो आप इसको 1 ओवर करेंगे टू फाइंड द इन्वर्स. ठीक है, फिर इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस दिस एंगल माइनस आयोटा साइन, और नीचे जो है वो उनका सम हो जाएगा. तो क्योंकि ये नंबर जो है इनका मॉडुलस 1 है. मॉडुलस क्यों 1 है, बिकॉज x पावर n इज इक्वल टू 1 लिया आपने. तो ये जो ये इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका मॉडुलस जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 होगा. तो डिनोमिनेटर के अंदर तो 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1. ठीक है, जो सिर्फ इसमें जो सिर्फ रह जाएगा वो न्यूमरेटर रह जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, कॉस के डॉट 360 बाय एन माइनस आयोटा साइन 360 बाय एन. और जो डिनोमिनेटर है इसका दैट बिकम्स इक्वल टू 1, क्योंकि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर बिकम्स 1 जब आप इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो यू ओनली गेट द न्यूमरेटर. द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हेयर विल बी cos of the inverse here, z inverse या x inverse जिसे आप कह रहे हैं, वो इक्वल आएगा इसके cos of k dot 360 by n minus iota sine of k dot k times 360 by n. ठीक है, ये इसका इन्वर्स आएगा. और इसको भी आप चेक करें तो ये भी जो है वो इसकी पावर जो है वो n वो भी 1 के इक्वल